हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में चैप्टर डिमांड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 3 करेंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है और ये डिमांड का आखिरी पार्ट है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्द से जल्द और सबसे पहले आपके पास वीडियो का लिंक पहुंच सके। सिस्टम वही है, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद सारा ऑप्शन पढ़ूंगा। लास्ट ऑप्शन पढ़ने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। तो बोर्ड में 40 से 40 लाना है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। एडवांस में बोल दे रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। No change in quantity demanded despite a change in the price of the commodity. Option A, perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. Option B, unit elastic demand, ED is equal to 1. Option C, inelastic demand, ED is less than 1. Option D, elastic demand, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is option A, perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. प्राइस में चेंज आया लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी हमेशा ऊपर रहता है, प्राइस need रहता है। न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी चेंज हो आंसर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity is called option A, demand, option B, quantity demanded, option C, movement along the demand curve, option D, shift in demand curve. Time up, and the correct answer is quantity demanded. स्पेसिफिक प्राइस है, प्राइस अलग अलग है 2, 3, 4 और क्वांटिटी भी तुम्हारा परचेजिंग करने का अलग अलग है। कम रेट है तो ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड है और रेट ज़्यादा है तो कम क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वेश्चन नंबर 3। डिमांड शेड्यूल मीन्स दैट schedule which express the relationship between option A, price and quantity demanded, option B, price and quantity supplied, option C, income and quantity supplied, option D, income and quantity demanded. Time up, and the correct answer is price and quantity demanded. डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्टीपर स्लोप शेप ऑफ द डिमांड कर्व इज इन विच सिचुएशन? ऑप्शन ए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ED is equal to 0. ऑप्शन बी, यूनिट इलास्टिक डिमांड, ED is equal to 1. Option C, inelastic demand, ED is less than 1. Option D, elastic demand, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is inelastic demand, ED is less than 1. Question number 5. Which one is the assumption of law of demand? Option A, price of the commodity should not change.
Option B, quantity demanded should not change. Option C, price of substitute good should not change. Option D, demand curve must be linear. Time up, and the correct answer is price of substitute goods should not change. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आता है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी कांस्टेंट. ये है assumption. Question number 6. Due to which of the following cause demand curve slopes downward? Option A, income effect. Option B, law of diminishing marginal utility. Option C, substitution effect. Option D, ignorance. Time up, and the correct answer is law of diminishing marginal utility. Question number 7. Flatter shape of demand curve is in which situation? Option A, perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. Option B, unit elastic demand, ED is equal to 1. Option C, inelastic demand, ED is less than 1. Option D, elastic demand, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is elastic demand, ED is greater than 1. स्टीपर स्लोप का पहला क्वेश्चन आया था. स्टीपर स्लोप में लेस देन 1 होता है और फ्लैटर शेप में ग्रेटर देन 1. फ्लैटर मतलब ज़्यादा एक्स एक्सिस की तरफ एक्सपेंड करेगा, फ्लैट रहेगा, स्लोप नहीं रहेगा. स्टीपर में हाईली स्लोपिंग रहेगा. क्वेश्चन नंबर 9. लॉ ऑफ डिमांड shows relation between option A, income and price of the commodity. Option B, price and quantity of a commodity. Option C, income and quantity demanded. Option D, quantity demanded and quantity supplied. Time up, and the correct answer is option B, price and quantity of a commodity. Law of demand price and quantity को ही explain करता है. Question number 9. If a good is demanded for producing some other goods, it is a cause of option A, joint demand. Option B, composite demand. Option C, derived demand. Option D, none of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज डिराइव्ड डिमांड. एक काफ़ी सारे गुड्स का डिमांड मतलब जॉइन करके एक बनाएंगे. जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए अपने को दुनिया भर का लगेगा, ब्रिक्स लगेगा, सीमेंट लगेगा, आयरन लगेगा, तो बिल्डिंग जो है डिराइव्ड डिमांड है. क्वेश्चन नंबर 10. अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड चूज द ऑड वन आउट. Option A, bread and butter. Option B, tea and sugar. Option C, Coke and Pepsi. Option D, car and petrol. Time up, and the correct answer is option C, Coke and Pepsi. Coke and Pepsi are substitute good. बाकी bread, butter, tea, coffee, car, petrol are complementary goods. Question number 11. Demand for sugar, milk, tea for making a tea is an example of option A, composite demand. Option B, derivative demand. Option C, joint demand. Option D, direct demand. Time up,
and the correct answer is joint demand. Question number 12. Elasticity of demand is a option A qualitative statement, option B quantitative statement, option C directional statement, option D none of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। यहाँ पे अपने को पता चलता है कि इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, तो नंबर में पता चलता है, तो नंबर में क्वांटिटेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनकम इफेक्ट इन केस ऑफ inferior goods will be option A positive, option B negative, option C 0, option D 1. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव। इनकम अगर कंज्यूमर का बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स को कम डिमांड करेगा, कम परचेस करेगा, और सुपीरियर थोड़ा सा नॉर्मल गुड्स का तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ ए गुड डिमांड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन प्राइस। ऑप्शन ए ED is equal to 1, option B ED is less than 1, option C ED is greater than 1, option D ED is equal to 0. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ED is less than 1। देखिए यहाँ बोला है परसेंटेज डिमांड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज फॉल इन प्राइस, तो डिनोमिनेटर कम से इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, मतलब कम इफेक्ट आया, डेल्टा क्यू में कम आया है ऊपर में न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में ज़्यादा का चेंज आया। तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर अगर कम होगा डिनोमिनेटर से तो लेस देन 1 होता है, और न्यूमिनेटर में ज़्यादा चेंज आएगा एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो ग्रेटर देन 1 होता है। Question number 15, elasticity of demand will be unit if ED is equal to 0, ED is equal to 1, ED is less than 1, ED is greater than 1. Time up and the correct answer is ED is equal to 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 को ही यूनिट इलास्ट्री या यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ गिवन पैराडॉक्स द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी पैरेलल टू वाई एक्सिस। Time up and the correct answer is negative, positive. Question number 17, if regardless of change in its price the quantity demanded of a good remains unchanged, then the demand for the goods will be option A horizontal, option B vertical, ऑप्शन सी पॉजिटिवली स्लोप, ऑप्शन डी नेगेटिवली स्लोप। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज वर्टिकल। ये वही केस है क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, जहाँ पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है, तो it will be a parallel to y axis, demand curve will be parallel to y axis। Question number 18,
Demand is more than unitary elastic if ED is equal to 0, ED is equal to 1, ED is less than 1, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is ED is greater than 1. मोर देन यूनिटरी मतलब एक से बेसी, मोर देन 1 होना चाहिए, तो मोर देन 1 होने के लिए इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1, तभी मोर देन 1 हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 19. According to the law of demand, when price fall, demand option A increases, option B decreases, option C expand, option D contract. Time up, and the correct answer is increase, expand. Question number 20. If the quantity demanded of a ghee increased by 5% when the price of butter increases by 20%, the cross elasticity of demand between both option A minus 0.25, option B 0.25, option C 4, option D minus 4. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.25. क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है, तो प्राइस 20% और डिमांड 5%. 5/20 करोगे आपका 1/4 आएगा, जो कि 0.25 होता है. क्वेश्चन नंबर 21. फॉर राइज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड, demand curve shift to right, demand curve shift to left, demand curves move downward, demand curve moves upward. Time up, and the correct answer is demand curve shifts to left. अदर फैक्टर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अदर फैक्टर में कोई भी चेंज आएगा, मतलब यहाँ पर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड घटेगा. तो डिमांड इकोनॉमिक्स में एक चीज़ है कि कुछ भी चीज़ बढ़ता है तो राइट तरफ शिफ्ट होता है, और कुछ भी चीज़ घटता है तो लेफ़्ट तरफ शिफ्ट होता है. और ये अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है. मूवमेंट की वजह से होता तो अपवर्ड डाउनवर्ड आ सकता था, लेकिन मूवमेंट की वजह से नहीं हो रहा है. अदर फैक्टर प्राइस की वजह से होता, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तब ये हो सकता था अपवर्ड शिफ्ट के लिए. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज द राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स इम्प्लाई? ऑप्शन ए डिक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन बी इंक्रीज इन डिमांड, ऑप्शन सी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन डिमांड. अभी अभी बोला था मैं कि कुछ भी चीज़ राइट का तरफ शिफ्ट होगा तो इंक्रीज होता है, और कुछ भी चीज़ लेफ्ट तरफ मतलब इकोनॉमिक्स में और लेफ्ट तरफ शिफ्ट तभी होगा तब वो डिक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 23. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन that of the price of the commodity, that is luxury good. Example. Option A perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. Unit elastic demand, ED is equal to 1. Inelastic demand, ED is less than 1. Elastic demand, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is ED is greater than 1, elastic demand. Question number 24. Law of demand is a, option A
quantitative statement, option B qualitative statement, option C both A and B, option D hypothetical. Time up, and the correct answer is option B qualitative statement. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा तो उसमें क्वांटिटी मतलब नंबर पता चलता है, ग्रेटर देन 1 मोर लेस देन 1, तो वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है. लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइस ऑन डिमांड इज नोन एज. ऑप्शन ए इनकम इफेक्ट, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ऑप्शन सी प्राइस इफेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. All of the following are determinants of demand except one. Option A consumer income, option B consumer taste and preference, option C quantity supplied, option D price of related goods. Time up, and the correct answer is option C quantity supplied. Consumer income, taste, preference, price of related goods all are determinants of demand. बाकी क्वांटिटी कुछ नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 27. If the price of motor car falls, demand for petrol, option A will decrease, option B remain constant, option C will increase, option D will be zero. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज विल इंक्रीज. मोटर कार में अगर प्राइस फॉल होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा. पेट्रोल पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो डेफिनेटली पेट्रोल का डिमांड इंक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 28. इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स, डिमांड फॉर कॉफी विल. Option A increase, option B decrease, option C remain constant, option D none of these. Time up, and the correct answer is increase. Decrease. If the price of tea falls, tea and coffee are substitute goods. टी का अगर प्राइस कम होगा तो पक्का उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड घटेगा. क्वेश्चन नंबर 29. डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट शुड हैव द फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट. ऑप्शन ए एबिलिटी टू बाय, ऑप्शन बी विलिंगनेस, ऑप्शन सी नीड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. Time up, and the correct answer is option D all of these. Question number 30. Higher the price of certain luxurious article, higher will be the demand. This concept is called. Option A Giffen effect, option B Veblen effect, option C demonstration effect, option D both B and C. Time up, and the correct answer is option B Veblen effect. क्वेश्चन नंबर 31. ये पार्ट में 32 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और मिला था तो बना दिया था. 31. When the quantity demanded fall due to rise in price, it is called. Option A extension in demand, option B upward shift, option C downward shift,
ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्शन। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ बोला है कि डिमांड फॉल हो रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइस, तो प्राइस की वजह से होता है अदर फैक्टिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वहाँ पे या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सटेंशन होगा। तो प्राइस की वजह से डिमांड फॉल हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अदर फैक्टर की वजह से जब होता है तो उनको इंक्रीज या डिक्रीज बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन है ये डिमांड का और ये पार्ट का ही। While drawing a demand curve, which of the following factor is allowed to change? Option A, consumer income. Option B, consumer preference. Option C, price of related goods. Option D, price of the commodity concerned. Time up and the correct answer is option D, price of the commodity concerned. प्राइस और क्वांटिटी को लेके ही डिमांड कब बनाया जाता है, तो प्राइस को अपने चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बाकी कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है और ये अपने एज्यूम करके चलते हैं कि ये सब चीज़ कांस्टेंट रहना चाहिए, ये सब चीज़ एज्यूम मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, डज नॉट अलाउ टू चेंज। तो इसी के साथ ये पार्ट में 32 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मैं कंप्लीट करने का कोशिश किया हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बाकी चैप्टर्स और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस का, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन को और लिंक को शेयर कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।